بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، اب چائے کا آرڈر دینا چاہتا تھا۔ ایسے وقت وہ دو لڑکیاں آ گئیں جو لفٹ میں اس کے ساتھ تھیں۔ ان کے ساتھ وہ عمر رسیدہ شخص بھی تھا۔ ان میں سے ایک بولی، کیا ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ بولا، یہاں بیٹھنے کی شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ چائے پینی ہوگی۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے بیٹھ گئے۔ کبریا نے چائے کا آرڈر دیا۔ اس شخص نے کہا، مجھے پروفیسر دینا ناتھ کہتے ہیں، یہ دونوں میرے بھائی کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا نام شاردا ہے اور اس کا نام میرا ہے۔ کبریا نے کہا، میرا نام البرٹ پارکر ہے، میں شکاگو یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، یہاں انڈین کلچر پر ریسرچ کرنے آیا ہوں۔ پروفیسر نے کہا، میں ایک پامسٹ ہوں، ستاروں کی چال اور ہاتھ کی لکیروں کو پڑھتا ہوں، قیافہ شناس ہوں، چہرہ اور آنکھیں پڑھ کر سامنے والے کے کردار کو بڑی حد تک سمجھ لیتا ہوں۔ میں نے لفٹ میں تمہارا چہرہ اور تمہاری آنکھیں دیکھ کر شاردا اور میرا سے کہا تھا، تم خاموش رہتے ہو، اندر سے بہت گہرے ہو، کم عمری کے باوجود زمانہ شناس دکھائی دیتے ہو۔ میرا نے کہا، انکل کی باتیں سن کر میرے اندر تجسس پیدا ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں آپ انکل کو اپنا ہاتھ دکھائیں، اپنا پیدائشی نام اور تاریخ پیدائش بتائیں۔ شاردا نے کہا، میری بھی یہی خواہش ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، میں کسی کا دل نہیں توڑتا، ہاتھ دیکھنا ہے تو میرے سویٹ میں چلیں، وہیں چائے پی لیں گے۔ وہ تینوں خوش ہو گئے۔ کبریا نے ویٹر کو بلا کر چائے سویٹ میں لانے کو کہا، وہاں کھانے کا بل ادا کیا، پھر ان کے ساتھ لفٹ کی طرف جانے لگا۔ اس دوران میں وہ ان تینوں کے خیالات پڑھتا رہا۔ پروفیسر دینا ناتھ ایک نہایت شریف انسان تھا، انتہائی شرافت کے باعث مصائب میں مبتلا ہوتا رہتا تھا۔ ان دنوں کوئی اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ جو بھی تھا اس کے متعلق کبریا بعد میں معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ پروفیسر کی طرح شاردا اور میرا بھی اچھے کردار کی لڑکیاں تھیں۔ وہ دونوں کبریا کی خوب روئی اور مردانہ وجاہت سے متاثر تھیں، اپنے انکل سے علم نجوم اور قیافہ شناسی سیکھ رہی تھیں۔ وہ تینوں بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے ہوٹلوں اور کلبوں میں جاتے تھے، وہاں امیر کبیر خواتین اور حضرات کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر سچی باتیں بتاتے تھے اور فیس کے طور پر ہزاروں روپے وصول کرتے تھے۔ یہی علم ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ وہ سویٹ میں آ کر پروفیسر کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی دوسری طرف میرا بیٹھ گئی۔ شاردا ان کے سامنے سینٹر ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کا ہاتھ ہم تینوں دیکھیں گے، اس لیے مجھے یہاں بیٹھنا ہوگا۔ کبریا نے پوچھا، تمہاری فیس کتنی ہے؟ 5000 لیتی ہوں، آپ سے نہیں لوں گی کیونکہ ہم نے آپ کا ہاتھ دیکھنے کی فرمائش کی ہے۔ میں تو فیس دوں گا کیونکہ یہ تمہارا پیشہ ہے۔ تمہارے 5000 اور میرا کے 5000 اور پروفیسر ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کی فیس 10,000۔ میں کل 20,000 ادا کر دوں گا۔ انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میرا نے کہا، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ کبریا وہاں سے اٹھ کر الماری کے پاس گیا، پھر وہاں سے بڑے نوٹوں کی گڈیاں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ یہ پورے 20,000 ہیں۔ ان کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ پروفیسر نے کہا، ہم اتنی بڑی رقم نہیں لیں گے، صرف میں آپ کا ہاتھ دیکھوں گا، آپ میری فیس دیں گے، لیکن میں تینوں کو ہاتھ دکھاؤں گا اور تینوں کا حق ادا کروں گا۔ آپ انکار کریں گے تو ہاتھ نہیں دکھاؤں گا۔ ہوٹل کا ملازم چائے اور سنیکس کی ٹرالی رکھ کر چلا گیا۔ کبریا نے کہا، اب لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، سنیکس لیں، چائے پئیں، پھر میرا ہاتھ دیکھیں۔ میرا نے پوچھا، آپ کیسے جانتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے؟ آپ تینوں ڈائننگ ہال اور لاؤنج میں 3 مختلف افراد کے ہاتھ دیکھ رہے تھے۔ کھانے کا وقت کہاں ملا ہے، ان کے بعد آپ میرے پاس آئے ہیں۔ وہ کھانے پینے لگے۔ شاردا نے کہا، آپ نے ہم پر نظر رکھی تھی، بھلا کیوں؟ اس پاگل جوان نے تم دونوں کے پیچھے پڑ کر ایک طرح سے دلچسپی پیدا کر دی تھی، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی تعریفیں سننا چاہتی ہو تو پھر سنو، تم دونوں بہت سندر ہو، کوئی بھی دل والا تم دونوں میں دلچسپی لے سکتا ہے اور اس پاگل کی طرح تمہارے پیچھے پاگل ہو سکتا ہے۔ وہ اس بات پر ہنسنے لگیں۔ پروفیسر نے چائے کی پیالی خالی کرتے ہوئے کہا، اب کام ہونا چاہیے، پلیز اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے اپنی دائیں ہتھیلی آگے بڑھائی۔ وہ تینوں اور قریب ہو گئے، جھک کر اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگے۔ پہلے زندگی کی لکیر دیکھی جاتی ہے، ہر شخص اپنی لمبی حیات دیکھنا چاہتا ہے۔ شاردا نے کہا، آپ کی عمر لمبی ہے، آپ بڑھاپے کی آخری حد تک جئیں گے، لیکن بڑے مصائب اور بڑی دشواریوں سے گزرتے رہیں گے۔ میرا نے کہا، آپ بڑے حوصلہ مند ہیں، حالات سے فائٹ کرنا جانتے ہیں، کیوں انکل؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ تمام دشواریوں سے مردانہ وار گزرتے رہیں گے۔ پروفیسر گہری سنجیدگی اور خاموشی سے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا۔ وہ دونوں بولتی جا رہی تھی۔ کبریا بھی خاموش تھا اور باری باری ان تینوں کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پروفیسر دینا ناتھ نے کہا، تم وہ نہیں ہو جو دکھائی دیتے ہو، اپنے اندر چھپے رہتے ہو، اور تم اندر چھپ کر رہنے پر مجبور ہو کیونکہ تمہارے دوست کم ہیں اور دشمن زیادہ۔ کبریا نے کہا، دوست واقعی کم ہے، میں کسی کو دشمن نہیں بنانا چاہتا، لیکن دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ فی الحال میں ان سے دور چلا آیا ہوں، یہاں مجھ سے جو ملے گا میں اسے دوست بنانے کی کوشش کروں گا۔ پروفیسر نے کہا، تم ایک غیر معمولی نوجوان ہو، دوسروں سے مختلف ہو، میرا تجسس اور بڑھ گیا ہے کہ تم اندر سے کیا ہو۔ شاید تم بتانا نہیں چاہو گے، مجھے پوچھنا نہیں چاہیے، میں بتاؤں گا، آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ابھی آپ سے اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ کچھ اور بتائیں۔
वो फिर हाथ की लकीरों को देखते हुए बोला, आजकल तुम बहुत परेशान हो, कोई बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हो या फिर तुम्हारी कोई बहुत अहम चीज गुम हो गई है। वो कायल होकर बोला, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं अपने पापा की तलाश में भटक रहा हूँ, वो कहीं गुम हो गए हैं। ये तो बड़ी परेशानी की बात है, वो कब और किन हालात में गुम हुए? कारोबार के सिलसिले में हांगकांग गए थे, इसके बाद इनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। मेरा दिल कहता है वो जहाँ भी हैं जिंदा सलामत हैं, या तो इन्हें कहीं कैदी बनाकर रखा गया है या फिर इनकी याददाश्त गुम हो गई है, इसीलिए वापस नहीं आ रहे हैं। तुम मुझे इनका नाम और तारीख पैदाइश लिख कर दो, मैं जायचा बनाऊंगा, एक आध घंटे में बता सकूंगा कि वो जिंदा है या नहीं। ये भी मालूम हो सकेगा कि वो मशरिक या मगरिब में है या शिमाल या जनूब में। मुझे अच्छी तरह यकीन है कि वो जिंदा हैं। आपने अभी कहा है मैं एक गैर मामूली इंसान हूँ, बेशक मेरे अंदर एक गैर मामूली सलाहियत है, जब मैं इसका मुजाहिरा करूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। मुझे अपनी सलाहियत से पापा की जिंदगी का सबूत मिल गया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मुल्क और किस इलाके में है। मीरा ने कहा, यह सुनकर मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो रही है कि आप ये गैर मामूली इंसान हैं। प्लीज आप जल्दी से बताएं कौन है, क्या है। हे भगवान, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। प्रोफेसर ने कहा, मीरा सब्र करो, पहले इसके पापा अहम है, इनके बारे में मालूमात हासिल करने दो। किब्रिया वहाँ अल्बर्ट पार्कर के नाम से था। इसने बाप का नाम पार्कर वाइल्ड बताया, लेकिन मेरी तारीख पैदाइश दुरुस्त बताई। प्रोफेसर इसी वक्त कागज कलम लेकर जायचा तैयार करने लगा। दोनों लड़कियां भी इस जायचे में दिलचस्पी लेने लगीं। किब्रिया मेरे बारे में जानने के लिए बेताब था। जब वो प्रोफेसर पार्कर वाइल्ड के हरूफ के अदाद लिखने वाला था, तब किब्रिया ने इसके दिमाग पर कब्जा जमाकर फरहाद अली तैमूर के हरूफ के अदाद लिखवाने लगा। मेरी तारीख पैदाइश वही थी जो कागज पर लिखी हुई थी। इस तरह मेरे नाम का जायचा तैयार होने लगा। मीरा कहना चाहती थी कि अंकल हरूफ के अदाद गलत लिख रहे हैं, लेकिन किब्रिया ने इसके जहन को भटका दिया। अचानक इसके हाथ को थाम लिया। वो अपने चोर जज्बों के बायस लर्ज गई, मुस्कुराने लगी, लेकिन शारदा को ठेस पहुंची। ये आरजू इसकी थी कि अल्बर्ट पार्कर इसका हाथ पकड़े। किब्रिया ने मीरा की हथेली को सहलाते हुए कहा, मैंने तुम लोगों से ये बात छुपाई थी, मैं भी हाथ की लकीरें पढ़ लेता हूँ। मीरा ने फौरन ही अपना हाथ छुड़ा लिया। किब्रिया ने पूछा, क्या हुआ? वो अपना हाथ सीने पर रखकर बोली, मैं अपना हाथ किसी को नहीं दिखाती, अपने अंकल को भी नहीं दिखाती। शारदा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये तो बस यूं ही नखरे करती है, आप मेरे बारे में कुछ बताएं। किब्रिया ने इसका हाथ थाम लिया। वो खुश हो गई। मीरा से बोली, तुम दस्ताने पहन कर रहा करो, कोई तुम्हारे हाथों को नजर नहीं लगाएगा। किब्रिया ने लकीरों को तवज्जो से देखते हुए कहा, तुम्हारी उम्र लंबी है मगर यह मुख्तसर हो सकती है। तुम्हें एक हादसा पेश आएगा, इस हादसे में बच जाओगी तो बुढ़ापे तक जीती रहोगी। वो बोली, तुमने पहले ही बात गलत कह दी, मुझे कोई हादसा पेश नहीं आएगा, छोटी मोटी मुश्किलात पेश आएंगी, मैं इनसे गुजर जाऊंगी। आप अंकल से ज्यादा माहिर नहीं हैं, ये मेरा हाथ देख चुके हैं। किब्रिया प्रोफेसर के ख्यालात पढ़ने के बाद ही कह रहा था। दरअसल प्रोफेसर ने शारदा को ये हकीकत नहीं बताई थी कि उसे एक जानलेवा हादसा पेश आएगा। ऐसे ही वक्त जिंदगी अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। प्रोफेसर ने अपनी भतीजे से सच नहीं कहा था, सच्चाई छुपा ली थी। वो अपने अंकल की महारत के सामने किब्रिया को अनाड़ी नजूमी समझ रही थी। वो बोला, मैं तुम्हारे अंकल को गलत नहीं कहूँगा, इसलिए खुद को अनाड़ी तस्लीम करता हूँ। मीरा टटोलती हुई नजरों से किब्रिया को देख रही थी। इसने शारदा के हाथ को पकड़ा था और अपने अंकल से बहस की थी। उन्होंने इसे समझाया था कि शारदा को वक्त से पहले सदमा न पहुंचाया जाए, हादसा और मौत की सच्चाई को इससे छुपाया जाए। किब्रिया यही सच्चाई कह चुका था और प्रोफेसर की बुजुर्गी की खातिर इस सच्चाई से इनकार कर रहा था। मीरा समझ रही थी कि वो दुरुस्त कह रहा है और वो इस इल्म में इसकी महारत को तस्लीम कर रही थी और इससे मुतासिर हो रही थी। प्रोफेसर ने बड़ी देर बाद कहा, बेशक तुम्हारे पापा की उम्र लंबी है, इस तवालत के पेश नज़र उम्मीद की जा सकती है कि वो जिंदा हैं, और अगर जिंदा हैं तो वो यहाँ से जुनूब की तरफ हैं। ये जायचा इसी सिमत इशारा कर रहा है। किब्रिया की दिलचस्पी बढ़ गई। वो सोफे पर पहलू बदल कर बोला, हम इंडिया के शुमाल में यहाँ दिल्ली में हैं, क्या वो हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों में या श्रीलंका में होंगे? यहाँ से दूर जुनूब में ऑस्ट्रेलिया भी है। हाँ, इन्हीं इलाकों में इन्हें तलाश किया जा सकता है। क्या फासला मालूम नहीं किया जा सकता? मुश्किल है, ये मालूम नहीं हो सकेगा कि वो यहाँ से कितने फासले पर हैं। एक तरीका है कि मैं यहाँ से जुनूब की तरफ सफर करता रहूँ, आप मेरे साथ रहें। फर्ज करें हम मद्रास या हैदराबाद दक्कन पहुँचते हैं और वहाँ आपका इल्म कहता है कि पापा आप भी जुनूब की तरफ हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपका इल्म कहता है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब वो शमाल की तरफ हैं, तो फिर वो शमाल की सिमत किसी करीबी इलाके में होंगे, यानी वो सेंट्रल प्रोविंस में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा या बंगाल में होंगे। प्रोफेसर ने तायद की, बेशक इस तरीका कार के मुताबिक तुम्हारे पापा के करीब पहुंचा जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहां कहां भटकता रहूंगा। तनहा नहीं हूं, मेरे साथ 2 जवान लड़कियां हैं। आप ये बताएं, आपकी माहाना आमदनी क्या है? उड़ती हुई रोजी है, किसी महीने 50,000 रुपये कमा लेते हैं, किसी महीने 5,000 भी नहीं मिलते।
मैं आपको माहाना 50,000 दूंगा मेरे साथ सफर करते रहने और होटलों में क्याम करने के अखराजात मैं बर्दाश्त करूंगा। फिर आप जहां जाएंगे अपने पेशे के मुताबिक अमीर कबीर लोगों को किस्मत का हाल बताते रहेंगे, वो आपकी इजाफी आमदनी होगी। प्रोफेसर ने दोनों लड़कियों को देखा। मीरा ने कहा, आप सरासर हमारे फायदे की बात कर रहे हैं। यूं भी हम बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े होटलों क्लबों में जाते हैं, आपके साथ भी यही सिलसिला रहेगा। शारदा ने कहा, मेरा दिल करता है आपके साथ सारी दुनिया घूमती रहूं। आपके साथ खुशी भी मिल रही है और आमदनी भी बढ़ रही है। मेरी दोनों बेटियां खुश हैं, मैं आपके साथ रहूंगा। किबरिया ने फोन के जरिए होटल के मैनेजर से राब्ता किया, फिर इसे प्रोफेसर दीनानाथ के कमरे का नंबर बताते हुए कहा, इनके तमाम बिल मेरे हिसाब में एडजस्ट करें, कल हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर उसी ने शारदा से कहा, पहले हम मद्रास जाएंगे, कल किसी फ्लाइट में 4 सीटें रिजर्व करा लो, पता नहीं जुनूब में कितनी दूर तक सफर करना होगा। प्रोफेसर ने कहा, तुमने वादा किया है कि अपनी किसी गैर मामूली सलाहियत के बारे में बताओगे। शारदा ने किबरिया के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज बताएं, मैं बहुत बेचैन हूँ। वो कुछ ज़्यादा ही बेचैन थी। इसके करीब रहकर किसी न किसी बहाने इसे छू रही थी। किबरिया को इन दोनों से दिलचस्पी नहीं थी। अगरचे मीरा बहुत खूबसूरत थी, शारदा के मुकाबले में संजीदा और ज़हीन थी। इससे मुतासर थी लेकिन रिजर्व रहने की आदी थी। किबरिया के मिजाज आशिकाना नहीं था, वो भी लड़कियों के मामले में रिजर्व रहने का आदी था। वो प्रोफेसर से बोला, मैंने कभी किसी को अपनी इस गैर मामूली सलाहियत के बारे में नहीं बताया, आज आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ शारदा और मीरा कभी किसी को मेरा ये राज नहीं बताएंगे। इन दोनों ने वादा किया कि वो हमेशा इसकी राजदार बनकर रहेंगी। उसने कहा, मेरी कुव्वत समात गैर मामूली है। इन तीनों ने इसे सवालिया नजरों से देखा। बात समझ में आ गई थी लेकिन वो वजाहत चाहते थे। उसने कहा, शायद ऐसी सलाहियत किसी को नसीब नहीं हुई होगी। अगर मैं अपने मतलूबा अफराद की बातें सुनना चाहूँ और वो हजारों किलोमीटर के फासले पर हों, तब भी मैं इनकी आवाज़ और लहजे को कैच कर लेता हूँ। प्रोफेसर ने हैरानी से कहा, क्या ऐसा मुमकिन है? तुम्हारी ये बात नाकाबिले यकीन है। वो बोला, ये नामुमकिन नहीं है। रेडियो या ऑडियो सिस्टम के जरिए दुनिया के एक सिरे की आवाज़ दूसरे सिरे तक पहुंचाई जाती है। ऐसा ही कुछ कुदरती निज़ाम मेरी कुव्वत समात के साथ है। आप अभी आजमा कर देख लें। मीरा ने कहा, अगर मैं यहाँ से दूर कहीं जाकर कुछ बोलूँगी तो आप सुन लेंगे? बेशक, तुम और शारदा लिफ्ट के जरिए नीचे होटल के बाहर जाओ और बातें करो। मैं यहाँ प्रोफेसर को बताता रहूंगा, बल्कि मोबाइल फोन के जरिए तुम्हें भी बताता रहूंगा कि तुम दोनों के दरमियान किस मौजू पर बातें हो रही हैं। वो दोनों फौरन उठ गईं। वो बहुत ज्यादा तयस्सुस में मुब्तला हो गई थी। अपना मोबाइल फोन लेकर वहां से चली गईं। वो प्रोफेसर से बोला, हम खामोश रहेंगे, मेरा जहन इन दोनों पर मरकूज रहेगा, इस तरह इनकी आवाजें मेरी समात तक पहुंचती रहेंगी। प्रोफेसर खामोश बैठा रहा। किबरिया मीरा के अंदर पहुंच गया। वो शारदा के साथ लिफ्ट में थी। उससे कह रही थी, हम अभी लिफ्ट में हैं, क्या अल्बर्ट हमारी बातें सुन रहा होगा? शारदा ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, अभी मालूम हो जाएगा। किबरिया ने प्रोफेसर को बताया कि वो दोनों लिफ्ट में क्या बातें कर रही हैं और अब लिफ्ट से निकलकर होटल के बाहर गार्डन में आ गई हैं। शारदा मीरा से कह रही है, तुम सोफे पर अल्बर्ट के साथ चिपक कर बैठ गई थी, क्या मुझे वो जगह नहीं दे सकती थी? मीरा ने कहा, फजूल बातें ना करो, मैंने करीब बैठने के बावजूद फासला रखा था। मैं तुम्हारी तरह छिछोरी नहीं हूँ। तुम किसी न किसी बहाने इसका हाथ पकड़ रही थी। इसमें छिछोरापन क्या है वो मुझे अच्छा लगता है। जब से उसे देखा है दिल इसी के लिए धड़कने लगा है। किबरिया प्रोफेसर को इनकी बातें बता रहा था। फिर इसने मोबाइल फोन पर इनसे राब्ता करके वो फोन प्रोफेसर को दिया। प्रोफेसर ने कान से लगाकर कहा, हेलो शारदा, तुम मीरा से झगड़ा क्यों कर रही हो? क्या वाकई अल्बर्ट के लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है? वो हैरानी से बोली, अंकल आप कैसे जानते हैं? मैंने अभी ये बात मीरा से कही है। प्रोफेसर लफ्ज ब लफ्ज इनकी बातें उन्हें सुनाने लगा। मीरा भी शारदा के फोन से कान लगाए सुन रही थी। उसने ये भी बताया कि वो लिफ्ट में क्या बातें कर रही थी। वो हैरान हो रही थी। मीरा ने कहा, हम अभी आ रहे हैं। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। प्रोफेसर ने कहा, एल्बर्ट, ये तुम्हारी हैरत अंगेज गैर मामूली सलाहियत है। बाई गार्ड आला समात कान से लगाए बगैर कोई दूर की आवाज़ नहीं सुन सकता। तुम इतनी बड़ी दुनिया में एक ही हैरान करने वाले शख्स हो। क्या बचपन से ऐसे हो? नहीं, अभी पिछले बरस से अचानक ये तब्दीली आई है। मैं इब्तदा में दूर की आवाज़ें सुनकर हैरान होता रहा। फिर मेरे पापा ने मशवरा दिया कि मुझे अपनी इस गैर मामूली सलाहियत को दूसरों से छुपाना चाहिए। उन्होंने दुरुस्त मशवरा दिया है। वैसे तुम अपनी इस ज़बरदस्त सलाहियत से अपनी पापा की आवाज़ सुन सकते हो। मैं कई बार कोशिशें कर चुका हूँ, इनकी आवाज़ मौसूल नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि किसी दुश्मन ने खुद तनवीमी अमल के जरिए इनका ब्रेन वॉश किया है, इनके लबो लहजे को जहन से मिटा दिया है, या फिर वो किसी हादसे के सबब अपनी याददाश्त खो चुके हैं। शारदा और मीरा वापस आ गईं। शारदा आते ही किबरिया के कदमों में बैठ गई। वो बोला, ये क्या कर रही हो? सोफे पर बैठो। वो इसके कदमों से लिपट कर बोली, अब तो मैं इन्हीं कदमों में रहूंगी। आप महाज्ञान वाले हैं, मुझे अपनी दासी बना लें।
मुझे दासी बनाने का शौक नहीं है, प्लीज यहाँ से उठो, तरीके से बैठो। इसने मीरा को देखा, वो एक तरफ खड़ी खामोशी से उसे देख रही थी। नजरें मिलते ही एक सोफे पर बैठती हुई बोली, आप वाकई बाकमाल है, ऐसी गैर मामूली सलाहियत किसी को नसीब नहीं हुई होगी। क्या आप अपनी इस सलाहियत से हमारी कुछ मदद कर सकेंगे? तुम क्या चाहती हो? अंकल का एक दुश्मन है, वो हमें बहुत परेशान करता रहता है। प्रोफेसर ने कहा, बेटी ये बात रहने दो, एल्बर्ट अपने पापा के लिए परेशान है, इसे किसी और मसले में ना उलझाओ। किबरिया ने कहा, इंसान बेवक्त वक्त कई मसाइल से निमटता रहता है, आप मुझसे अपने मामला ना छुपाएं, पता नहीं हमें कितने अरसे तक साथ रहना है, जब तक साथ रहेगा हम एक दूसरे के काम आते रहेंगे। शारदा ने कहा, मैं कुछ अरसे तक नहीं, हमेशा साथ रहूंगी, प्लीज आप वादा करें। मीरा ने नागवारी से कहा, शारदा हम एक अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं और तुम अपनी ही बातें किए जा रही हो। वो गुस्से से बोली, तुम क्यों जल रही हो? क्या इसलिए कि एल्बर्ट तुम्हें लिफ्ट नहीं दे रहे हैं? और क्या तुम्हें दे रहे हैं? ख्वामख्वाह लिफ्ट लेने की कोशिशें कर रही हो। शारदा ने किबरिया से कहा, देखो ये मेरी इंसल्ट कर रही है, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए? वो हिचकिचाते हुए बोला, मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की है, मैं नहीं जानता मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से कैसे दिया जाता है। मैं तुम्हें प्यार करना सिखा दूंगी, लेकिन ये क्या जरूरी है? मैं अपने पापा के मामले में परेशान हूँ, फिर मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मोहब्बत तो बेकार लोगों का मशगला है। मीरा मुस्कुराने लगी। शारदा ने इसे गुस्से से देखा, फिर किबरिया से कहा, मोहब्बत को मशगला ना समझो, ये दिल से होती है, ये दिल का मामला है, ये दिल का मामला सारी जिंदगी के लिए होता है। वो बोला, कैसी बातें कर रही हो? दिल तो खून को पंप करते रहने का एक आला है, इस आले से मोहब्बत कैसे हो सकती है? मीरा खिलखिलाकर हंसने लगी। प्रोफेसर मुस्कुराने लगा। किबरिया ने मासूमियत से पूछा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। प्रोफेसर ने कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो, दिल खून को पंप करके इसे सारे जिस्म में पहुंचाता है, लेकिन शायरों ने दिल को मोहब्बत का मस्कन और मरकज बना दिया है। फिर इसने शारदा से कहा, बेटी तुमने अल्बर्ट के हाथ की लकीरें नहीं पढ़ी, इसका मिजाज आशिकाना नहीं है, ये इन लोगों में से है जो मोहब्बत करने में वक्त ज़ाया नहीं करते, बेहतर है इसे मोहब्बत की बातें ना करो। मीरा ने कहा, मैं अंकल के एक दुश्मन की बात कर रही थी। किबरिया ने कहा, मैं एक बार किसी तरह इस दुश्मन की आवाज़ सुन लूं तो फिर हमेशा इसकी ये बातें सुनता रहूंगा, ये मालूम करता रहूंगा कि वो प्रोफेसर के बारे में किसी से क्या कह रहा है और इनके खिलाफ क्या करना चाहता है। इसकी आवाज़ कैसे सुनी जा सकती है? वो शायद मुंबई में होगा। आप इसका फ़ोन नंबर जानते हैं? मुझे इसके कई फ़ोन नंबर याद हैं, क्या फ़ोन पर इसकी आवाज़ सुनोगे? किबरिया इस बात में सारी लाकर इसके खैरात पढ़ने लगा। वो पहले भी मालूम कर चुका था, इसके दुश्मन का नाम नागेश्वर पांडे था। वो महाराष्ट्र की एक सियासी पार्टी का लीडर था जिसके तमाम कारकुन मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने 6 वर्ष पहले सूरत शहर में हिंदू मुस्लिम फसादात कराए थे और सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल कराया था। मुंबई शहर में भी वो मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात करते रहते थे। वहाँ के दौलतमंद मुसलमानों से लाखों रुपए भत्ता वसूल करते रहते थे। प्रोफेसर का राब्ता पांडे की पर्सनल सेक्रेटरी से हो गया। इसने कहा, मैं प्रोफेसर दीनानाथ बोल रहा हूँ, नागेश्वर पांडे साहब से बात करना चाहता हूँ। लेडी सेक्रेटरी ने कहा, वो एक मीटिंग में है, कल इनसे बात हो सकेगी। किबरिया सेक्रेटरी के अंदर पहुंच गया। वो इस वक्त पांडे की आगोश में थी। फोन बंद करने के बाद मुस्कुराकर पूछ रही थी, ये वही प्रोफेसर है ना जिसकी एक भतीजी तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ रही है? पांडे ने पूछा, क्या दीनानाथ का फोन था? तुमने बात क्यों नहीं कराई? अभी मैं तुम्हें खुश कर रही हूँ, अभी तुम पर सिर्फ मेरा हक है। बाय द वे, मीरा में ऐसी क्या खास बात है, क्यों इसके पीछे पड़ गए हो? यूँ देखा जाए तो इसमें कोई खास बात नहीं है। ऐसी कितनी ही लड़कियां मेरे बेड पर आती रहती हैं, लेकिन वो मेरे लिए एक चैलेंज बन गई है। एक बार मैंने इसे बहुत बड़ी ऑफर दी थी, इसने वो ठुकरा दी। मैंने फ़ोन पर बात की तो उसने नफरत से थूक दिया। मैं ये बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगा। कुत्ते की बच्ची एक मुसलमान से इश्क कर रही थी, मैंने इसके आशिक को कत्ल करा दिया। इसे फ़ोन पर बताया कि किस तरह इसके जाल को कुत्ते की मौत मारा है। वो बोली, इस मुसलमान को मारकर तुम्हें क्या मिला? वो तो फिर भी तुम्हारे काबू में नहीं आई। तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? इसे अगवा कराओ और इसके कपड़े उतारकर इस पर थूक दो। बड़ी मुश्किल है, इलेक्शन सर पर हैं, ऐसे वक्त बदमाशियां नहीं चलती, जनता के सामने साधु बनकर रहना पड़ता है। तो फिर मिट्टी डालो इस पर, इलेक्शन के बाद इससे निपट लेना। मुझसे इसकी एक बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। कौन सी बात? वो साली हाथ की लकीरें पड़ती है। इसने फ़ोन पर कहा था कि इसके मुकद्दर में एक मुसलमान है, एक को कत्ल करने से क्या होता है, कोई दूसरा मुसलमान आएगा और ज़रूर आएगा। वो सेक्रेटरी को परे धकेलते हुए बोला, क्या ये गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं है? साली हिंदू जाति को छोड़कर किसी मुसलमान की गोद में जाएगी। मैं इस बार से ही ठिकाने लगा दूंगा, ना वो रहेगी ना कोई मुसलमान इसकी ज़िंदगी में आएगा। तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? किसी मुसलमान पर बस नहीं चल रहा है तो मुझे गुस्सा दिखा रहे हो? पांडे ने एक जोरदार तड़ाक की आवाज़ के साथ तमांचा रसीद किया। सूअर की बच्ची, मुझे तना देती है। तुम्हारी जैसी औरतों को जरा मुंह लगाओ तो सर चढ़ जाती हैं। चल भाग यहाँ से।
اس نے ایک لات ماری، وہ اپنا لباس اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ یہ سوچ کر تل ملا رہا تھا کہ میرا نے اس پر تھوک کر پھر کسی مسلمان کو اپنا یار بنایا ہوگا۔ کبریا نے اسے فون کرنے پر مائل کیا۔ وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا، ادھر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کبریا نے ریسیور کان سے لگا کر کہا ہیلو۔ وہ بولا پروفیسر دینا ناتھ کہاں ہیں؟ اسے فون دو۔ پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میں اس کا باپ ہوں، تم سے کیا مطلب ہے؟ اسے فون دو۔ تم جھوٹ بولتے ہو، باپ نہیں ہو سکتے، ان کے پتا جی کا دیہانت ہو چکا ہے۔ تم گدھے ہو، میں ہندو دل کا لیڈر ناگیشور پانڈے ہوں۔ کبریا نے پروفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے فون پر کہا اچھا تو تم ناگیشور پانڈے ہو، میں پروفیسر کا سیکرٹری ہوں، ابھی صاحب میٹنگ میں ہے، کل کسی وقت کال کرو۔ بکواس مت کرو، کیا وہ اتنا دولت مند ہو گیا ہے کہ سیکرٹری رکھنے لگا ہے؟ میرا سے میری بات کراؤ۔